સવાલ ઉઠી રહ્યો છે। ત્યારે મનસુખ માંડવિયાને ફોન આવ્યો હોવાની માહિતી આવી રહી છે। મનસુખ માંડવિયાને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે। ગુજરાતમાંથી માંડવિયાને ફરી એકવાર મંત્રી પદ મળી શકે છે। મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે। ત્રીજી વખત પીએમ મોદી જ્યારે શપથ લેવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે તમામ મંત્રીઓને ફોન આવવાની શરૂઆત થઈ હોવાના સમાચાર સૂત્રો પાસેથી આવી રહ્યા છે। સાંજે 7:15 રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં શપથવિધિ થવાની છે। ત્યારે સૂત્રો પાસેથી જે જાણકારી આવી રહી છે, જેડીયુમાંથી 2 મંત્રી હોઈ શકે છે। ત્યારે આ તરફ મનસુખ માંડવિયાને ફોન આવ્યો હોવાના સમાચાર આવી રહ્યા છે। લલ્લનસિંહ કેબિનેટ મંત્રી હોઈ શકે છે તેવા પણ સમાચાર સૂત્રો પાસેથી આવી રહ્યા છે। ત્યારે હાલ જે સૌથી મોટા સમાચાર છે, ગુજરાતમાંથી માંડવિયાને મંત્રી પદ મળી શકે છે તે મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે। ત્રીજી વખત પીએમ પદના શપથ જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી લેવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે સૌ કોઈના મનમાં એક સવાલ છે કે આ મોદીની ટીમમાં આ વખતે કોણ કોણ જોવા મળશે। ત્યારે મનસુખ માંડવિયાને ફોન આવ્યો હોવાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। મનસુખ માંડવિયાને મંત્રીમંડળમાં ફરી એક વખત સ્થાન મળી શકે છે તેવા સમાચાર આવી રહ્યા છે। ગુજરાતમાંથી મનસુખ માંડવિયાને ફરી એકવાર મંત્રી પદ મળી શકે છે। વધુ માહિતી મેળવીશું। ફોન લાઈન ઉપર સંવાદદાતા ગીતા મહેતા જોડાઈ ચૂક્યા છે। ગીતા, સૌથી મોટી વાત, મનસુખ માંડવિયાને ફોન આવ્યો હોવાની માહિતી, ફરી એકવાર તેઓને મંત્રી પદ મળી શકે છે। આ સાથે અન્ય ગુજરાતમાંથી કયા કયા મંત્રીઓ હશે? જે ગુજરાતમાંથી અત્યારે 2 નામ કન્ફર્મ થયા છે, જેમાં અમિતભાઈ શાહ અને મનસુખ માંડવિયાનો સમાવેશ થાય છે। અગાઉ કેન્દ્રીય કેબિનેટમાં રૂપાલા પણ હતા, પરંતુ આ વખતે તેમને પડતા મુકાય તેવી એક સંભાવના છે। નવી સંભાવના CR પાટીલની પણ છે, જેઓ અત્યારે ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ છે। તેઓને પણ કેન્દ્રીય કેબિનેટમાં સમાવાય તેવી સંભાવના છે, પરંતુ હજી સુધી તેમને કોઈ કોલ આવ્યો નથી। એટલે હાલ પૂરતું અમિતભાઈ શાહ અને મનસુખ માંડવિયાના નામ કન્ફર્મ માની શકાય। તે સિવાય ઓલ ઓવર કેન્દ્રીય કેબિનેટની વાત કરીએ તો ભાજપના મંત્રીઓમાં અમિતભાઈ શાહ, રાજનાથસિંહ, નીતિન ગડકરી, શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, પ્રહલાદ જોશી, જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા, નિર્મલા સીતારામન, અર્જુન મેઘવાલ, મનોહર ખટ્ટર, સરબંદા સોનેવાલ, કિરણ રિજ્જુ, અન્નામલાઈ, ઇન્દ્રજીત રાવ, રક્ષા ખડસે અને કમલજીત સહેરાવતનો સમાવેશ થાય છે કે જેઓ ભાજપમાંથી મંત્રીમંડળમાં સ્થાન પામશે। જ્યારે સાથી પક્ષોના સંભવિત મંત્રીઓની જો વાત કરીએ તો કે રામમોહન નાયડુ, સી પેમ્માસાની, લલ્લનસિંહ, રામનાથ ઠાકુર, જયંત ચૌધરી, ચિરાગ પાસવાન, HD કુમારસ્વામી, પ્રતાપરાવ જાદવ, ચંદ્ર ચૌધરી અને રામદાસ અઠવલેનો સમાવેશ થાય છે। કન્ફર્મ મિનિસ્ટર્સની જો વાત કરીએ ગુજરાતમાં તો અમિતભાઈ શાહ અને મનસુખ માંડવિયા, બાકી જે મેં આપને નામો જણાવ્યા તે સંભવિત નામો છે જેને સ્થાન મળી શકે છે। જી ગીતા, આભાર માહિતી બદલ। ગુજરાતમાંથી જે સંભવિત નામો હોઈ શકે છે તેના પર ખાસ વાત કરવામાં આવી। તો આગળ આપણે જણાવી દઈએ, વિનય તમારી સાથે સંવાદદાતા દિલ્હીથી આપણી સાથે સીધા અહીંયા જોડાઈ चुके हैं। तेरी पासेથી પણ આ मुद्दे વધુ માહિતી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીશું। विनीत, जिस तरह से जानकारी आ रही है, सारे मंत्रियों को फोन आने की भी शुरुआत हो चुकी है। इस बार मोदी की टीम में कौन कौन होगा, क्या जानकारी आ रही है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी पे 3.0 के लिए सबको कॉल जो है वो आने का सिलसिला शुरू हो गया और अब से थोड़ी देर बाद 11:30 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो शपथ लेने के पहले जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो चर्चा करेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर मोदी मंत्रिमंडल को लेकर के जो कॉल आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, जिसमें यह माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फिर से एक बार मोदी कैबिनेट में जो है वो लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बीजेपी की तो नितिन गडकरी का नाम जो है वो आ रहा है, अमित शाह का जो नाम है वो आ रहा है, जैसे कि हमारे सहयोगी भी नाम बता रहे थे। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सहयोगी दलों की बात करें तो वहां पर भी खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। जयंत चौधरी का नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण है कि वो बीजेपी के साथ अलायंस में आए थे, एनडीए अलायंस में आए थे और उसके बाद ही जो है वो उसी समय लगभग तय हो गया था कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। और जब मोदी 3.0 बनने जा रहा है उस वक्त जयंत चौधरी को जो है वो भी बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें चिराग पासवान का नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। एलजेपी से वो आते हैं, 5 सीट जो है उन्हें दी गई थी, 5 सीटों के साथ वो गठबंधन में चुनाव लड़े थे और 5 सीट जो है वो उन्होंने जीती थी। तो ऐसे में चिराग पासवान का नाम जो है
वो भी यहाँ पर सामने आ रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें हम पार्टी के जीतन राम मांझी की बात करें, जीतन राम मांझी का नाम भी जो है वो भी सामने आ रहा है और वो भी मोदी 3.0 में जो है वो मंत्री बन सकते हैं। खासा तौर पर अगर हम बताएं कि जीतन राम मांझी के साथ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो जो है वो अलग सा इक्वेशन है और उन्हें भी मंत्रिमंडल में जो है वो प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी 3.0 जो है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवायद जो है वो शुरू कर दी थी। मोदी 3.0 के ही आखिरी दिनों में 100 दिन का एजेंडा जो है उसको लेकर के विभागों से जो है वो जानकारी मिली गई थी और अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ लेंगे। शपथ लेने के पहले जो है वो अपने मंत्रिमंडल के जो सहयोगी है उनके साथ 100 दिन के एजेंडे पर वो चर्चा करेंगे और साफ तौर पर उन्हें संदेश देंगे कि आखिरकार किस तरह से जो है वो काम किया जाए। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने की बात की थी, उस एजेंडे पर जो है वो कैसे काम किया जाए इसको लेकर के जो है वो बात होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु से जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है अन्नामलाई जो है उनको भी मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही यह माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जो है जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्हें भी पार्टी में जो है वो शामिल किया जा सकता है, वह उन्हें भी कैबिनेट बर्थ जो है वो दी जा सकती है। अगर इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विप्लव देव का नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा से जो है वो जीत करके आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी कैबिनेट में जो है वो शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह से सर्बानंद सोनोवाल का नाम आता है वो काफी महत्वपूर्ण है, वो पहले भी जो है वो मंत्री थे। इसके साथ ही साथ अगर हम दिल्ली से भी बात करें, पिछली बार मीनाक्षी लेखी थी और इस बार जो है मीनाक्षी लेखी को जो है के बदले जो है कमलजीत सहरावत जो है वो जीत करके आई हैं, उन्हें जो है मंत्री बनाया जा सकता है। तो तमाम जो बड़े लोग हैं, तमाम जो चेहरे हैं उसको न्यूज 18 लगातार बता रहा और इन्हें जो है वो मंत्री पद जो है वो दिया जा सकता है। और अब से थोड़ी देर बाद सभी लोग जो है वो प्रधानमंत्री आवास पर आएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनसे चाय पर चर्चा करेंगे और मोदी 3.0 का विजन जो है वो उन्हें बताएंगे। जी बिल्कुल विनीत, कई नामों की चर्चा हो रही है, न्यूज 18 लगातार वो नाम भी दिखा रहे हैं। अभी जो मीटिंग मिलने वाले उसमें भी जो मंत्री उपस्थित रहेंगे उसके ऊपर से आधारित भी ये होगा कि किन किन मंत्रियों का नाम लगभग फिक्स माना जा रहा है। खास बात यह है जेडीयू है टीडीपी दोनों में से दो मंत्री हो सकते हैं, एनसीपी और शिवसेना में से एक मंत्री हो सकते हैं, वो लगभग निश्चित माना जा रहा है। बताया सहयोगियों की तरफ, लेकिन एक खास बात है जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सहयोगी दलों की बात करें तो वहां पर सहयोगी दलों को भी जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। टीडीपी से जो है वो रामबाबू नायडू को जो है वो कैबिनेट मंत्री का पद जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ एक एमओएस का बर्थ भी जो है वो टीडीपी को दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जेडीयू से भी दो नाम जो है वो चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ एलजेपी से अगर हम बात करें तो एक नाम जो है वो चल रहा है। हम पार्टी से बात करें एक नाम चल रहा है, एक नाम शिंदे की पार्टी से भी एक नाम जो है वो कैबिनेट में मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अजीत पवार एनसीपी का जो गुट है उन्हें भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सहयोगी दलों को जो है इस पर खासा जो है वो तवज्जो दी जा रही है। हालांकि अगर हम बीजेपी के लोगों से बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 2014 की भी बात हो या 2019 की भी बात हो तब भी बीजेपी जो है वो अपने बल पर जो है वो पूर्ण बहुमत में थी, लेकिन अपने बल पर भी पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद भी उन्होंने सहयोगी दलों का साथ में रखा था। एनडीए की सरकार बनी थी और इस बार भी जो उनका एनडीए का अलायंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि बताया कि लगभग 30 साल पुराना अलायंस है और सभी एक साथ मिल करके जो है वो सरकार बना रहे हैं। और इस बार जिस तरह से एनडीए को बहुमत मिला है, हालांकि बीजेपी जो है वो बहुमत थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन एनडीए को जो है वो प्री पोल अलायंस है और ऐसे में जब एनडीए को पूरी तरह से बहुमत मिला है, इस बार भी हम देख रहे हैं कि हालांकि 2014 में भी सहयोगियों को प्रतिनिधित्व मिला था, 2019 में प्रतिनिधित्व मिला था और इस बार भी 2024 में भी जो है वो बीजेपी के साथ साथ जो सहयोगी दल है उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल करवाया जा रहा है। जी विनीत धन्यवाद।